काफी बार ऐसा होता होगा कि तुम बाहर जा रहे हो, तुम किसी लड़की से मिल रहे हो, मे बी तुम्हारे किसी फ्रेंड ने एक लड़की से इंट्रोड्यूस करा दिया है, एंड अगर तुम्हारी पर्सनालिटी मेरे जैसी है या तुमने यहाँ पे वीडियोस देख के कुछ ज्यादा ही अप्लाई कर लिया है कि तुम बहुत ज्यादा बकचोदी कर रहे हो, बहुत ज्यादा फन कर रहे हो, एंड यू आउट देयर, तुम सेंटर ऑफ अटेंशन वगैरह हो रहे हो, बट दिस गर्ल जिससे तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें मिलवाया है, या ये जो लड़की तुम्हें कोल्ड अप्रोच में एट अ बार या एट अ क्लब या मॉल में कहीं पे तुमसे मिली है, तुम्हारी पर्सनालिटी एक बहुत ही ज्यादा है उसके लिए, बिकॉज शी इज शाय इन एंड ऑफ हरसेल्फ, बिकॉज उसका नेचर इज वेरी डिफरेंट देन द अदर गर्ल्स यू मीट, और तुम्हारे नेचर से एकदम ही अलग है. देयर इज अ वेरी हाई चांस फॉर हर टू बी टर्न्ड ऑफ. द वे यू टॉक टू अ शाय गर्ल is a bit different. थोड़े से tweaks होते हैं जो वहां पे करने होते हैं. That's what we're going to be breaking down in this video. तो यहाँ पे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 4 rules of how to talk to a shy girl and get her attracted. Let's go. Hey, what's up guys? Welcome back to another video. My name is Kshitij and you guys are watching Iron Man Lifestyle. यार यहाँ पे we help men like you be more confident, develop social skills, get more dates and get into deeper fulfilling relationships. Alright, so in the past we've helped like thousands of men go on more dates and get more fulfilling relationships. So if you're new to the channel, make sure you guys hit the subscribe button because यहाँ पे बहुत crazy चीजें हम बताते रहते हैं. जैसे आज I'm going to be sharing with you 4 rules of how to talk to a shy girl. So rule number 1 is to understand her blueprint. Like for simplicity sake, हम ना लड़कियों को 2 कैटेगरीज में डाल सकते हैं. One who are going to be very out there, who are going to be open, more sexual, more fun. The second would be a little bit more shy, who was going to take time to open up. तो हमें जब भी हम किसी लड़की से बात कर रहे हैं, हमें ये समझना है कि what category do they fall in. If she's a shy girl, वो एक different category होता है. The way you talk to a girl who's like more confident, more in touch with their sexuality, who's going to be more open with people, who has dated people around, जिसको ज़्यादा attention मिला हुआ है, and she's not quote unquote shy. She's someone who's more confident and more just out there. So that kind of a girl, you can get away with a lot of flirting, teasing, being out there, extreme level of confidence and all of that because she's sure about herself and उसका जो personality trait है, it's naturally a bit more extroverted. The other type of a girl who's a little bit more shy, उसका natural trait isn't very out there. This kind of a girl maybe तुम्हें ज़्यादातर clubs में नहीं मिलने वाली है. Maybe during the daytime is where you're gonna meet this type of a girl. If you banter with her बहुत ज़्यादा, if you flirt with her too much, or if there's a lot of touching and a lot of those things, अगर तुम ये भी सोच रहे हो कि जो time है जो एक लड़की से बात करने में या उसका phone number लेने में, उसके आगे भी बात बढ़ाने में जो जाता है, वो same इसके साथ होना चाहिए, तो वो नहीं होने वाला है. Firstly, we need to understand कि the time taken for every girl is going to be very different. हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि one size fits all. अगर एक लड़की से बात करने में 15 मिनट में तुम्हें एक फोन नंबर मिल रहा है कोल्ड अप्रोच के थ्रू, जरूरी नहीं है कि with this girl 15 मिनट is enough. Maybe it could be longer or it could be shorter as well. So the rule out here is whenever you're talking to a girl, don't be in your head in the sense of ये मत सोचो कि यार इतना टाइम लगता है फोन नंबर लाने में या फिर अट्रैक्शन बिल्ड करने में या उस लड़की से ट्रस्ट एंड कंफर्ट बनाने में, तो वो सेम थ्रू आउट हर एक लड़की के साथ बात करते हुए होगा. ऐसा नहीं होने वाला है. You need to be very present at that moment, which means कि जब भी तुम किसी से बात कर रहे हो, तुम्हें वहां पे you need to let go of all ideas कि इतना टाइम लगता है ये चीजें होने में, या अब ये मेरे से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देगी, अब ये हंसना स्टार्ट करेगी. बिकॉज व्हाट यू डूइंग इज तुम एक पास्ट इंटरैक्शन को यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, बट सिंस पीपल आर डिफरेंट, ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट, गर्ल्स आर डिफरेंट, हम वो सेम चीज प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं. सो बाय बीइंग प्रेजेंट आउट हियर इज यू बी पेशेंट एंड यू गो वन स्टेप एट अ टाइम. पेशेंस इन द सेंस कि तुम यहाँ पे इसलिए नहीं आए हो कि तुम्हारे एक तो दिमाग में एजेंडा ये नहीं होना चाहिए कि मुझे बस फोन नंबर लेना है या मुझे मेकआउट करना है, मुझे सेक्स करना है और इतने टाइम में ये सारी चीजें हो जानी चाहिए. द बेस्ट थिंग इज टू लूज ऑल एजेंडा दैट यू हैव टॉकिंग टू अ गर्ल. बट जनरली जब भी तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, योर गोल इज टू गेट द गर्ल एंड नॉट टू गेट अ मेकआउट और नॉट टू गेट अ फोन नंबर या फिर टू गेट सेक्स, इज टू गेट द गर्ल एंड यू वांट टू बिल्ड समथिंग विद द गर्ल. अब उस सेंस में अगर 5 मिनट या 10 मिनट में तुम्हें फोन नंबर नहीं मिल रहा है, तो डोंट फ्रीक आउट, या फिर वो लड़की हंसना स्टार्ट नहीं कर रही है, या फिर वो शी इज नॉट आस्किंग क्वेश्चंस बैक टू यू. इट्स ओके. इफ शी इज देयर, शी इज लिसनिंग टू यू टॉक एंड शी इज गिविंग यू हर टाइम, वो ठीक है, बिकॉज मे बी शी नीड सम मोर टाइम टू ओपन अप, जहां पे शी कैन इन्वेस्ट बैक इनटू द कॉन्वर्सेशन. कई बार ऐसे होने वाला है कि 90-10 रूल तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा. 90% ऑफ द टाइम तुम्हें ही बात करनी पड़ेगी और 10% ऑफ द टाइम शी विल टॉक. अब ये स्विच हो जाता है फ्रॉम 90% मैं बात कर रहा हूँ, 10% लड़की बात कर रही है, टू लाइक 80-20 और लाइक 70-30 एंड फाइनली 60-40 ऑल्सो. बट ये टाइम बहुत डिफरेंट होता है हर एक लड़की के साथ और हर एक कॉन्वर्सेशन में कि वो कब और कैसे स्विच हो रहा है. सो अगैन कमिंग बैक टू कि यू गॉट टू बी पेशेंट एंड यू गॉट टू हैव योर आईज ऑन द प्राइज, व्हिच इज कि तुम्हें ये लड़की पसंद है, तुम्हें इससे बात करनी है, तो सबका कंफर्टेबल होने का टाइम इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट. सो बी देयर विद हर, talk to her, spend as much time as you can with her. In a number of cases, if the girl is shy, you might need 1, 2, 3 dates or even more to even get to a state of kissing. Usually it's not very common that
this happens, but there will be girls who will be more shy. अब ये चीजें डिपेंड करती हैं काफी चीजों पे. It's gonna depend on her upbringing, alright? What are the messages उसके family ने उसको दिए हुए हैं around sex, around sexuality, around boys, all of that. If ये बोला गया कि यार लड़कों से दूर रहना है, बहुत ही बेकार होते हैं लड़के, वो एकदम परेशान कर देंगे तुम्हें, naturally वो trust वगैरह build करने में ज्यादा time लगने वाला है. Secondly, what is the trauma that she's faced in the past? It could be trauma through her parents while growing up, any form of abuse or any form of past relationship का trauma यहाँ पे आ सकता है, which will depend on how much trust she has in you, how easily she's going to open up to you and how easily she's going to be sexual with you or take the conversation ahead with you. वो बात आगे बढ़ने के लिए थोड़ा time लग सकता है depending on what her experiences are. While you're talking to her, you will find out about all of these things, but generally it does not matter कि तुम्हें क्या करना है, like अगर इसका इतना trauma हो रखा है या उसकी experiences है तो मुझे ऐसे behave करना है, नहीं. The only golden rule out here is to be patient and have your eyes on the prize. Don't lose patience and don't be like यार अगर कि यार मेरे से control नहीं हो रहा है, I need to fucking hold her hand, I need to do this, otherwise attraction down होने वाला है. You need to be secure with yourself. Let her take her time, make her as comfortable as you can, and things will be very, very great for you. Let's move on to rule number 2, which is less intent and less attraction building stuff. Mostly यहाँ पे जो भी मेरा advice मैंने तुम्हें दिया हुआ है, जैसे flirting का वीडियो है या confidence का वीडियो है या generally frame control वगैरह का वीडियो है, वहाँ पे हम ज्यादातर फोकस करते हैं ज्यादा attraction पे. Attraction होता है हमारा banter करके, बकचोदी करके, flirt करके, tease करके, sense of humor के ऊपर जो वीडियो है, ये सारी चीजों में हम ज्यादा attraction build करने की कोशिश करते हैं. With a girl who is shy, अगर वो लड़की shy है तो हमें ज्यादा अट्रैक्शन बिल्ड करने पे फोकस नहीं करना है, हमें कम अट्रैक्शन पे ध्यान देना है. जैसे इंटेंट, तो इंटेंट का मतलब होता है कि अपने इंटेंशन क्लियर करना. वहां पे यू कैन सॉर्ट ऑफ हिंट दैट यू आर इंटरेस्टेड इन द गर्ल, बट अगर तुम क्लियरली कर रहे हो आई रियली लाइक यू पहली मीटिंग में कि आई रियली लाइक यू, यू आर अमेजिंग, दैट कुड शॉर्ट सर्किट हर एंड दैट कुड लिटरली डिप हर अट्रैक्शन फॉर यू. शॉर्ट सर्किट मतलब बहुत ज्यादा हो सकता है, दैट कुड बी टू मच प्रेशर फॉर हर. व्हाट वी वांट टू डू आउट हियर इज वी वांट टू रिड्यूस द प्रेशर फॉर हर एंड बिल्ड मोर कंफर्ट एंड मोर कनेक्शन फॉर हर. सो हाउ डू यू रिड्यूस द प्रेशर फॉर हर? आई एम गोना लिस्ट अ कपल ऑफ एक्टिविटीज जिससे प्रेशर ज्यादा होता है और वो हमें कम करना है. सो लाइक एनी फॉर्म ऑफ टचिंग, वंस शी इज कंफर्टेबल ओनली देन इट मेक्स सेंस फॉर यू टू स्टार्ट टचिंग हर. एनी फॉर्म ऑफ बहुत ही ज्यादा फ्लर्ट, बहुत ही ज्यादा चीजी थिंग्स दैट माइट मेक अनकंफर्टेबल. टचिंग इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, or flirting in front of other people, touching or holding hands in public. Maybe she's not comfortable doing those things in public, she wants to do those things in a private setting. So maybe you want to wait कि कब तुम एक private setting में होगे, जब वहां पे you can take things ahead. The overarching idea is कि less sexual stuff, less flirting with her, पूरा casual, मतलब अपने intentions वगैरह थोड़ा सा control करके रखना है, less sexual stuff. But वहां पे clearly it should be pretty clear कि you are interested in the girl, इसीलिए तुम उससे बात कर रहे हो. It should not be कि she's to keep guessing और तुम at the end of the day friend zone हो जाओ. तो थोड़ा बहुत इंटेंट, थोड़ा बहुत फ्लर्टिंग ठीक है, ये बस दिखाने के लिए कि हाँ आई एम फनी, जोक्स आर गोना बी ग्रेट, ये चीजें तुम कर सकते हो, बहुत सही रहेगा. सो द गोल्डन रूल इज कि यहाँ पे डोंट डू एनीथिंग दैट विल पुट यू एज अ फक बॉय. ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत चीजें वहां पे होंगी, लाइक इफ यूर कॉन्फिडेंट, इफ यूर फ्लर्टिंग, इफ यूर ग्रेट एट फ्लर्टिंग, ऑल दोस थिंग्स नेचुरली उसको लगेगा ओ माय गॉड दिस गाय इज अ फक बॉय, बट यू कैन टोन इट डाउन. नाउ वंस यू टोन दीस थिंग्स डाउन, what is the thing that she wants? Okay, which brings us to law number 3 or rule number 3. Rule number 3 is she needs more connection building and more trust. Trust, connection building, comfort, emotional connection, all of these things is what matters more. यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें conversation पे ज्यादा ध्यान देना है. Conversations are going to be great, and conversation, surface level conversations नहीं, those conversations where you get to know each other better. Maybe talking about her past, maybe talking about your past, telling stories from your past, telling things about yourself कि तुम आज यहाँ पे जिस मुकाम पर पहुंचे हो, what led you to that. Maybe there was some instances that you had, any form of vulnerability you can share, any form of emotional connection you can share. Alright, तो ये सारी चीजें अगर तुम कर रहे हो will make more sense on the conversation front rather than trying to build attraction. Now पहली मीटिंग में जब तुम मिल रहे हो, focus on conversation. In the subsequent meetings, focus on trust, focus on comfort around there, and focus on intimacy. अब यहाँ पे अगर तुम second या third date पे हो, holding hands but not in public view सबसे, or like little bit of touching could lead to building more comfort and more trust. Like if your arm is around her waist and you guys are sitting like that and she's leaning on you, right, and there's not a lot of people around, that will build more trust with you. When you're holding a hand, that builds more trust. When you're walking on the road, you simply move on the side, जिस side पे traffic आ रहा है, so that she's protected from the side of the traffic. These kind of things. Little gestures like, once she's reached home, you can text and ask, did you reach home? Those kind of things. So small gestures will go a long way into, you building that trust and comfort with her and you being there for her. Also out here, the goal is to build sort of a habit in the sense कि यार तुम रोज बात कर रहे हो, maybe रात को सोने से पहले बात कर रहे हो, थोड़ा बहुत. Now clearly there needs to be attraction
अट्रैक्शन ओनली देन ये चीजें आएंगी यहाँ पे इस पॉइंट पे जहां तुम कॉन्वर्सेशन कनेक्शन पे बिल्ड कर रहे हो एंड इंटिमेसी बिल्ड कर रहे हो. बट जनरली इट्स नॉट गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन. लिटिल बिट ऑफ अट्रैक्शन इज इनफ. देन मूव टू टॉकिंग मोर अबाउट ईच अदर, गेटिंग टू नो ईच अदर बेटर. दिस पोर्शन की तुम्हें ज्यादा कंफर्ट वगैरह कैसे बढ़ाना है, आई डिड अ वीडियो एज वेल, हाउ टू मेक अ फॉल इन लव विद यू. आई थिंक इट वाज लाइक 7 tips to make a fall in love with you. Watch that video. That's all about, connection building and all about all of those things. Moving on to rule number 4, storytelling. Here's why storytelling is amazing. Okay, storytelling basically कि तुम stories बता रहे हो अपनी लाइफ के बारे में या वो अपनी लाइफ के बारे में stories बता रही है. अब generally हमने अभी attraction तुम्हें समझाया कि क्या चीजें attraction build करती हैं और क्या चीजें trust and comfort build करती हैं. Usually जो भी चीज तुम्हारा attraction build करेगी, तुम्हारा trust and comfort उसमें नीचे हो रहा है, और कोई भी चीज तुम्हारा trust and comfort ऊपर ले जाएगी तो तुम्हारा attraction नीचे होता है. यहाँ पे clearly हमें less attraction चाहिए but trust comfort वगैरह ज्यादा चाहिए. Storytelling is the only thing that builds trust and comfort and attraction at the same time. And here's how. When you're telling stories about yourself, तो उसमें क्योंकि तुम अपने बारे में कुछ चीजें शेयर कर रहे हो, मे बी तुम एक वल्नरेबल स्टोरी बता रहे हो कि बचपन में तुम्हारे साथ कुछ चीज हुई थी जहाँ पे तुम रोए थे, या तुम कोई फैमिली के साथ कुछ चीज अपनी शेयर कर रहे हो अबाउट द फैमिली, या you're sharing things about the happiest moment of your life or the most embarrassing moment of your life or the achievement that you're the most proud of. तुम ऐसी चीजें शेयर कर रहे हो वहाँ पे. Now she's getting to know more about you कि what kind of person you are और जो तुम आज हो वो कैसे बने हो. तुम्हारी कमिंग ऑफ एज स्टोरी कि वो क्या एक चीज थी जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली, या कोई एक चीज थी जिससे तुम्हारी लाइफ की ट्रैजेक्टरी बदल गई और तुम बहुत इंस्पायर हुए. तुम किन लोगों से इंस्पायर होते हो. मे बी यू सॉ वन ऑफ योर आइडल्स इन पब्लिक एंड यू मेट हिम एंड दैट लेफ्ट अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन यू. और मे बी कोई टीचर था जिसने बहुत इंपैक्ट दिया तुम्हारे ऊपर. या फिर तुम अपनी क्रेजी स्टोरीज बता सकते हो जहाँ पे तुम you've done crazy things. मतलब जो भी तुम्हारी एडवेंचर वाली स्टोरीज है, तुम्हारे दोस्तों के साथ स्टोरीज है, पार्टी स्टोरीज है, गेटिंग ड्रंक स्टोरीज, ऑल ऑफ दीस थिंग्स. सो देयर आर डिफरेंट स्टोरीज दैट यू कैन टेल. अब एनी टाइम यू शेयर अ स्टोरी, वहाँ पे शी इज गेटिंग टू नो मोर अबाउट यू एंड मोर कनेक्शन एंड मोर ट्रस्ट इज बिल्डिंग. वंस वी नो पीपल तो वी कैन ट्रस्ट देम. सेकेंडली, अट्रैक्शन कैसे बढ़ता है? अट्रैक्शन ऐसे बढ़ता है बिकॉज इन स्टोरीज के अंदर देयर विल बी दिस थिंग कॉल्ड एन एम्बेडेड DHV. DHV stands for demonstration of higher value. अब demonstration of higher value छोटी छोटी चीजें, जैसे मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ कि यार सबसे एडवेंचरस स्टोरी यही दिमाग में आती है. मैं नैनीताल गया था और वहाँ पे आई वेंट स्किनी डिपिंग इन द लेक. अब यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाई वैल्यू क्या है? दैट आई एम क्रेजी और मेरी ज्यादा फटती नहीं है. दैट मींस आई कैन डू क्रेजी थिंग्स, आई एम अ लॉट ऑफ फन एंड आई डोंट गेट स्कैर्ड इजीली. देन उसके बाद मैं कुछ चीजें बता सकता हूँ कि यार मैं अपने कॉलेज में आई यूज्ड टू वर्क विद मार्लबोरो एंड बडवाइजर एज वेल. दैट मींस नाउ व्हाट्स द हाई एम्बेडेड DHV आउट हियर कि इवन इन कॉलेज आई एम वेरी रिसोर्सफुल एंड आई एम वेरी एम्बिशियस. सो ऐसे करके जो भी तुम स्टोरीज बता रहे हो अपनी क्रेजीनेस के बारे में व्हाटएवर, तो उसमें देयर आर दीस डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ हाई वैल्यू दैट पोर्ट्रे यू एज समवन हु इज ऑफ वैल्यू. जब ये चीजें बाहर आती हैं तो वहां पे तुम्हारा अट्रैक्शन भी ऊपर जाता है. प्लस एट द सेम टाइम स्टोरीज आर फनी, सो एनी फॉर्म ऑफ ह्यूमर दैट यू ऐड वो भी अट्रैक्शन तुम्हारा ऊपर ले जाता है. कोई भी बैंटर, कोई भी फ्लर्टिंग, कुछ भी चीजें तुम बता रही हो, मेकिंग द अदर पर्सन लाफ, तुम्हारा अट्रैक्शन ऊपर जाता है. कंफर्ट के टाइम पे नेचुरली योर जॉब इज टू गेट टू नो मोर अबाउट द पर्सन, टॉक अबाउट योर होप्स, फियर्स, ड्रीम्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरीज, वो सब. एंड अगर स्टोरी टेलिंग यूज करके तुम करते हो तो दोनों चीजें साथ में ही अट्रैक्शन भी बिल्ड होता है एंड ट्रस्ट बिल्ड होता है, कंफर्ट बिल्ड होता है, कनेक्शन बिल्ड होता है. तो इस तरीके से तुम एक शाई गर्ल से बात कर सकते हो और वहां पे धीरे धीरे उसका कंफर्ट बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं. सो जस्ट समराइजिंग इट अगेन, नंबर 1, शाई गर्ल्स यूजुअली देयर गोना टेक टाइम टू ओपन अप टू यू. वो टाइम लगने वाला है, कुछ उसमें इंपेशेंट मत हो कि अभी होना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए. जस्ट बी पेशेंट एंड बी देयर फॉर हर, फॉलो अप विद हर, मीट हर. ऑलराइट. नंबर 2, ज्यादा सेक्सुअल चीजें, ज्यादा इंटेंट और अट्रैक्शन बिल्डिंग वाली चीजें मत करो. बैंटर, फ्लर्टिंग, सेक्सुअल टचिंग इन पब्लिक, ये सब थोड़ा सा कम रखो. ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत अट्रैक्शन तुम्हें वहां पे करना होगा. पॉइंट नंबर 3 इज यू नीड मोर कंफर्ट, मोर कनेक्शन, मोर ट्रस्ट. दिस वुड बी होप्स, फियर्स, ड्रीम्स के बारे में बात करना, अपनी स्टोरीज वगैरह के बारे में बात करना, एक इमोशनल कनेक्शन बनाना, वल्नरेबिलिटी शेयर करना, अपनी कॉमनैलिटीज वगैरह रखना वहां पे, एंड सम फॉर्म ऑफ टचिंग विच इज बेसिक कंफर्ट बिल्डिंग टचिंग. एंड देन पॉइंट नंबर 4 इज स्टोरी टेलिंग बिकॉज इट विल बिल्ड अट्रैक्शन एंड कंफर्ट एंड ट्रस्ट एट द सेम टाइम, प्लस इट्स गोना मेक हर लाफ एज वेल. These 4 rules, use them. Next time you find out someone who's shy, clearly make sure you're reading someone's blueprint and not being like यार मैं सबके साथ ऐसा हूँ तो मैं ऐसा ही रहूँगा. कई बार ये कहते हैं यार मेरी तो पर्सनालिटी ऐसी, मुझे सेम रहना है. Yes, but let's say तुम्हारी पर्सनालिटी is crazy like me कि तुम्हें हमेशा डांस करना है, हमेशा शोर मचाना, you're more out there and let's say you're extroverted. But if something bad happens, let's say there's a death of your close one, alright? Clearly you're not going to be very high energy there. तुम्हारी emotional state change होएगी. So there is no such thing as कि मेरा एक ही zone है, alright? We have different personalities in and of ourselves. There are different emotions that we go through. और वो जो situation होती है वो define करती है कि हमारा कौन सा personality, हमारा कौन सा self, हमारा कौन सा emotion उस time पे बाहर आ रहा है और वो कौन सी state में हमें रहना है उस point पे. So the situation defines that. Similarly, you can be very malleable यहाँ पे. You can switch. You can talk to a person जब तुम्हें दिख रहा है कि वो लड़की ज़्यादा परेशान हो रही है, अगर तुम बहुत ही ज़्यादा क्रेजी चीजें कर रहे हो. Tone it down, take a step back, relax, comfort बनाओ, connection बनाओ. I hope you love this video. That's going to be all from my side. If you like this video, guys, we've got a mentorship program, a 90-day
प्रोग्राम जहाँ पे हम लोगों को कोच करते हैं. We get them amazing results. Like these are the 90 days जहाँ पे we get you to a point of getting 1 to 3 new dates every week और 90 days के अंदर help you get a girlfriend. If you're someone who needs more help, who wants to work with us in person, जो हमसे me and my team से coach होना चाहता है, what you can do is you can book a free call with us. मैं लिंक नीचे डाल दूंगा. It's ironmanlifestyle.co/coaching. वहाँ पे जाके क्लिक करो, फॉर्म होगा उसको भरो so that हम तुम्हारे बारे में थोड़ा और जान सकें. And then कॉल पे we're gonna design a 90-day game plan for you. जो भी तुम्हारी problems है, we're gonna sort them out for you and get you to a point in the next 90 days that you have an amazing dating life. That's gonna be all from my side, guys. Make sure you hit the subscribe button, spank it, smash it, demolish it. I will see you guys in the next video. Cheers.